Yes, today's Islamia's blog. Hello everyone, Assalamu alaikum. So kindly open your books of Islamia, then open page number 20. Hurry up. All of you have your books, right? Yes. Is there someone who Yes. is there someone Yes. who, is there someone who doesn't have a book? Okay, I'm not screen sharing the pictures today. Okay? Kindly do open your books and open page number 20. Hurry up. Okay, in the last class we started the chapter and we learned that what are the rights of fellow human beings. Page number is basically 19, but we will be starting from page number 20. Okay, Teacher, I was absent. Please explain page number 19. you want me to explain the whole page again? Okay, I'm just going to give you a recap. Okay, Sanan, I know you are very sharp and you will just get get with it. Okay, now first of all we talk about the chapter name is the What rights is of. the page number? Page number is 19, 1 9. How many times do you have to tell you the page number? Okay, so kindly open your books. Page number is 19. Our chapter name is the rights of fellow human beings. Okay, we have already studied the page number 19 and half of page number 20. I'm just going to give you a recap. Okay, are we clear? Okay, have you all Yes. opened your books? Yes. Okay, so kindly do me a favor and mute your mics and don't speak when I'm speaking. Okay, okay. As soon as Okay, we're teacher. as soon as we complete one paragraph, I'll ask you that you can ask me anything. Okay, but don't speak in the middle, please. Now, the rights of fellow human beings. We talked about that in Islam. Islam has established a society where everyone is on good terms. Okay, मैं आप लोगों को क्या बताया था कि this is a religion in which everyone is friendly with everyone. सही है, हर किसी की सबसे दोस्ती होती है. Even अगर हमारे कोई neighbors होते हैं, अगर हमारे कोई elders होते हैं, so do we disrespect with them? Okay, it does not happen. Why? Because we know our responsibilities. Everyone knows their rules and responsibilities and they work according to them. Okay, so क्या कह रहे हैं कि इस्लाम के इन अरबिक हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, हुकूकुल इबाद. व्हाट इज द वर्ड वी यूज? हुकूकुल इबाद. इट मीन्स द राइट ऑफ फेलो ह्यूमन बींग. सही है कि हर किसी जो भी ह्यूमन होता है दे हैव देयर सर्टेन राइट्स. सही है, हर किसी की अपनी राइट्स होती हैं, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि दे हैव टू फॉलो दैम. ओके, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कैन बी गॉट फ्रॉम द फॉलोइंग हदीस. सही है, कह रहे कि देयर इज अ फेमस हदीस जिससे हमें राइट्स ऑफ फेलो ह्यूमन बींग्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है. क्या है? द राइट्स ऑफ अदर्स आर अ कंपल्सरी ड्यूटी एंड यू शुड फुलफिल दिस बिफोर यू ऑर्डर द अलमाइटी फॉर योर ओन राइट्स. सही है, मैंने आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया था कि इसकी फेमस हदीस क्या है कि हमें हमेशा दूसरे की राइट्स के लिए राइट्स का ख्याल रखना चाहिए. वाई? बिकॉज जब हम लोग अल्लाह ताला के पास जाएंगे एंड वी विल आस्क हिम कि हमारी राइट्स क्यों पूरी नहीं हुई. सो ही फर्स्ट ही विल क्वेश्चन आस्क कि आपने दैट डिड यू फॉलो द अदर्स राइट्स, क्या आपने दूसरों की राइट्स पूरी करी थी. सही है, सो ऑटोमेटिकली वी शुड ऑलवेज ट्रीट अदर्स द वे दैट वी वांट टू बी ट्रीटेड. सही है, जिस तरह से हम दूसरों का ट्रीट करेंगे तो उसी तरह से लोग क्या करते हैं, हमारे साथ ट्रीट करते हैं. Okay, now the rights of parents. Now we're moving towards in this chapter we're going to be studying three different rights, that the rights of parents, the rights of children, and the right of needy people. Okay, so first we're moving towards the parents. Okay, so what did we studied in this? We talked about that कि parents क्या होते हैं, parents क्या करते हैं, ये हमारे लिए great hardships में जाते हैं. hardship से क्या मुराद है? We already did the words in meaning. से ये hardship से क्या मुराद है? suffering. सही है, तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी सफरिंग्स फेस करते हैं, सफरिंग से क्या मुराद है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर किड. सही है, तो हम लोग अगर हमें चलना नहीं आता होता या व्हेन वी गेट इल, सो वो क्या करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें हर अच्छी बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं. सही है, एंड दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड इन रिटर्न. सही है ना, और बदले में हमें कभी बोलते हैं कि नाउ बिकॉज हम लोगों ने आपको बड़ा किया है या बिकॉज वी टॉट यू हाउ टू लर्न, नाउ यू नीड टू गिव अस सम रिवॉर्ड. ओके, ऐसा कोई भी सीन नहीं होता. सो दैट इज़ वाई हमारी जो होली कुरान के अंदर प्रॉफेट वसल्लम ने, तो उन्होंने क्या बताया है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो किसको दी गई है? पेरेंट्स की राइट्स को दी गई है. सही है, नाउ देयर वाज अ हदीस द होली प्रॉफेट वसल्लम सेड मे दैट पर्सन बी डिसग्रेस एंड ह्यूमिलेटेड. सही है, मैं आपको बता चुकी हूँ डिसग्रेस या ह्यूमिलेट करने का क्या मतलब होता है. यस अनीशा, व्हाट इज द वर्ड डिसग्रेस मीन्स? मिस नाफरमानी करना. नाफरमानी करना. एंड व्हाट डज इट मीन इन इंग्लिश? यस राफिल, what is the word Yes. disgrace? What does the word disgrace mean? Or humiliate someone. What does it mean to humiliate someone? Teacher,
Teacher do not respect someone. To make someone feel ashamed. एग्जैक्टली, टू मेक समवन फील अशेम, कि किसी को मतलब शेमफुल, मतलब उनको कंसिडर करवाना कि द एक्ट दैट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। सही है। सो प्रोफेसर साहब ने क्या कहा था कि when once a time he was sitting and he was continuously saying that may that person be disgraced and humiliated। सही है। सो a companion of his asked, सही है, उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनसे पूछा कि who you are talking about, सही है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। so what did he said is that one who has aged parents and does not look after them and hence does not enter the paradise। उन्होंने क्या बोला कि जो जिनके पेरेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स ओल्ड हो चुके हैं और वो उनका ख्याल नहीं रखते, और ऐसा कोई भी इंसान होगा जो कि अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखेगा, वो पैराडाइज के अंदर एंटर नहीं होगा। सही है। यहाँ तक कोई मसला, ये सिर्फ और सिर्फ एक रीकैप है। सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ओपन पेज नंबर 20, हरी अप नाउ। Once a person asked the Holy Prophet Sallallahu, Wadia, Miss. okay, so once a person asked Holy Prophet Sallam, who has the first and the most rights over me। सही है। उन्होंने क्या पूछा कि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा राइट्स किसकी होती हैं। तो प्रोफेसर सल्लम ने क्या बोला कि जो फर्स्ट 3 राइट्स हैं हमारे ऊपर, वो किसकी होती हैं। जी, कौन मुझे बताएगा। हमारी मदद की। मदर की। जो फर्स्ट 3 राइट्स होती हैं वो किसकी होती हैं, हमारी मदर की होती हैं, और जो 4th राइट होती है वो हमारी किसकी होती है, हमारे ऊपर हमारे फादर की होती है। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या क्या शो हुआ था कि इस्लाम के अंदर क्या बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो किसको दी गई हैं, मदर को दी गई हैं। दैट्स वाई द फर्स्ट 3 राइट्स आर गिवन टू अवर मदर एंड द 4th राइट इज गिवन टू अवर फादर। ओके, नाउ क्या कह रही है कि इट इज़ अवर ड्यूटी टू बी ग्रेटफुल टू देयर पेरेंट्स, टू रिस्पेक्ट एंड लुक आफ्टर देम, एंड if due to ill health and old age they become cranky, let them be and not answer them back, for Allah Almighty has said। सही है। क्या क्रैंकी से क्या मुराद है हमारा। यस रजा। Yes, Raja. What is the word cranky means? Cranky. CRANKY. Okay. Miss, Yes. बताऊं? Yes. Irritable or bad tempered. Exactly. What is the word cranky means? Cranky का means होते हैं कि अगर कोई जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, जब ओल्ड एज के साथ साथ लोगों का क्या होता है, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ एजिंग पेरेंट्स हैं, जो लोग एज करते रहते हैं, दे गेट इल। सही है ना। वो थोड़े बीमार भी होते हैं या उनको थोड़े से मसले भी होते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली दे गेट क्रैंकी। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, जो हमारे बड़े, जो हमारे मतलब जो हमारी नानी होती है, हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, नानियाँ दादी, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमें डांट भी देती हैं। जैसे हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, अगर हम लोग कुछ मजे कर रहे होते हैं घर में, कोई गाने वाने सुन रहे होते हैं, तो वो थोड़े से गुस्से में आ जाती है कि इतने घर में शोर क्यों हो रहा है। सही है। सो दिस इज एन हैबिट्यूल। तो क्या कह रहे हैं कि इफ़ दिस हैपन्स, अगर आपके कोई भी ग्रैंड मदर्स हैं या आपके कोई ग्रैंड फादर्स हैं, अगर वो इस तरह से आपको कुछ कहें, सो क्या कहा है कुरान ने, क्या कहा है कि लेट देम बी। उनको कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे कभी भी बदतमीजी नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, उनकी हमेशा तब भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दे हैव डन एवरीथिंग फॉर अस व्हेन वी वर अ किड। नाउ व्हेन दे गेट ओल्ड इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर देम। सही है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, राइट्स ऑफ पेरेंट्स हम सारी पढ़ चुके थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन। इज द टॉपिक पेरेंट्स, राइट्स ऑफ पेरेंट्स क्लियर? काइंडली टेल मी। Yes. Yes. If you want to ask me anything you can ask me। Yes, Sanan, is your are your confusions Teacher. clear? Yes, teacher. Okay, do you want to ask me something, anyone? Yes, Danish, why is your hand raised? You can unmute yourself। मिस गलती से हुआ है। अच्छा, यानी कि आपने गलती से अपना हैंड रेस किया हुआ है ना। एंड काइंडली स्टॉप टॉकिंग इन योर चैट। ओके, स्टॉप टॉकिंग इन चैट बॉक्स। आई हैड टू क्लोज इट क्योंकि आप लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही थी। सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। Children are one of Allah's blessing for parents, so they should thank Him or her on their birth, whether the newborn is a boy or a girl. If they can afford it, they should perform the akika, the head shaving of a newborn ceremony, which is a sunnah, and also give them good Islamic names. A hadith of Holy Prophet ﷺ said. So ये क्या कह रहे हैं कि children क्या होते हैं? Children are a blessing from Allah Almighty. सही है। What they're saying is that no matter if a child is a girl or a boy, we should respect him and love him equally. सही है। आपको देखा होगा। Yes,
आप ओके राफे, क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने बात देखी होगी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर भी या फिर बाहर भी इस तरह कभी कभी होता है कि सम पीपल आर नॉट हैप्पी व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, सही है। वो लोग उन गर्ल्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितना वो लोग बॉयज़ के होने पे खुश होते हैं, सही है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट नो मैटर इट यू हैव अ गर्ल और अ बॉय, यू शुड रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, यू शुड ट्रीट देम इक्वली एंड यू शुड लव देम इक्वली, सही है। व्हेन देयर इज अ सेइंग इज दैट वी शुड डू अकीका। डू यू गाइस नो व्हाट अकीका इज? आप लोगों ने अपने किसी कजन्स का, किसी सिस्टर्स का, अपनी स्मॉल ब्रदर्स का आपने होते हुए देखा है? इसमें गया था कि मैं अपने जी, क्या होता है क्या यस इसमें? टीचर। कौन मुझे बताएगा इसमें क्या होता है? मिस इसमें ना जैसे अगर लड़की होती है मैं गया था बकरी काटते मिस। यस वानिया, माइंडी लेट हर स्पीक फर्स्ट। यस वानिया, मिस उसके मिस मिस मच्छर बोलने बकरी काटते। सबर तो यस करो। यस। यस वानिया। मिस अगर लड़की होती तो उसके लिए बकरी काटते हैं दो। दो? नहीं, एक बकरा काटते हैं, लड़की होती है और लड़का होता है तो दो बकरे। अपनी मर्जी है मिस, अपनी मर्जी है, दो काटे एक काटे। एग्जैक्टली लेकिन बेसिकली होता क्या मच्छर है? को काट दें। नहीं राफे, एग्जैक्टली होता क्या है कि जो भी बॉर्न जो भी बेबी होते हैं क्या करते हैं कि उसके जो हेड होता है उसको शेव करते हैं, सही है। और जो उसकी हेयर्स होते हैं उन सब के बदले क्या करते हैं कि एक अकीका देते हैं, बिकॉज ही इज़ अ बॉर्न, सही, वो बिल्कुल नया नया होता है, ही इज़ अ ब्लेसिंग। तो उसके बदले में क्या करते हैं कि हम लोग गोट जो है वो बेसिकली ज़िबा करते हैं, सही है। नाउ इट्स अप टू अस, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग 1 गोट कर सकते हैं, अगर आप लोग नहीं कर सकते तो आप लोग 2 कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस, सही है। लेकिन क्या करते हैं कि करना क्या है, सुनना है, मतलब हमारे प्रोफेसर सल्लम वगैरह ने भी ये करा था, सही है। नाउ व्हाट इज सेइंग इज अच्छा हम दैट वी लोग शुड, गाय नहीं कर सकते। नहीं नहीं गाय नहीं कर सकते, सही है। नाउ व्हाट इज सेइंग इज दैट वी शुड गिव अवर चिल्ड्रंस गुड इस्लामिक नेम, सही है। गुड इस्लामिक नेम से क्या मुराद है? ये शारजा, गुड इस्लामिक नेम से क्या मुराद है? ये शारजा, गुड इस्लामिक नेम्स क्या मतलब? टीचर कैन आई टेल। वेट वेट अना आफ्टर शारजा, ये शारजा, नो, ओके अली, टीचर कैन आई टेल। वेट वेट अलीशा वेट, अली बताएंगे। यस अली, व्हाट डज इट मीन बाय गुड इस्लामिक नेम्स? ओके अली आई थिंक सो गए हैं। यस अलीशा। Miss good Islamic names like Muhammad Ahmad, that are the names that are Islamic and that Allah loves. Okay, so Abdullah Farhan, do you think that only Muhammad and Ahmad and the names of prophets that are the only names that Allah Ta'ala will love? Teacher, can I tell? Yes, Anaya? टीचर जिसके मायने अच्छे हों, जैसे एग्जैक्टली मोहम्मद। एग्जैक्टली गुड इस्लामिक नेम से क्या मुराद है कि जिनकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो कि इस्लामिक नेम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने देखा होगा आजकल जब नेम्स चल रहे हैं तो लोग क्या करते हैं कि वो मुस्लिम नेम्स भी नहीं होते, उनकी कोई मीनिंग भी नहीं होती, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को देखते हुए इंस्पायर होकर रख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग टर्किश ड्रामे बहुत देख रहे हैं, लोग कोई और से ड्रामे देखते हैं, क्या करते हैं उसमें कोई नेम पसंद आता है तो अपने डॉटर्स या अपने सन का रख देते हैं। तो ऐसे नेम्स नहीं रखने चाहिए जिनकी कोई मीनिंग नहीं हो, सही है। जिनकी अच्छी मीनिंग हो, जिनकी इस्लामिक मीनिंग्स हो, जो कि सुनने में अच्छे लगे लोगों को, तो हमेशा अच्छी नेम रखने चाहिए, सही है। तो इससे क्या होता है कि जितना आपने अपने बेटे का, अपनी बेटी का नाम अच्छा होगा तो उनकी लाइफ पे भी क्या पड़ता है, इससे इफेक्ट पड़ता है, सही है ना। There is a hadith. On the day of resurrection, you will be called by your name and your father's name. Hence, baptized with good names. सही है। क्या कह रहे हैं कि हदीस क्या है कि on the day of resurrection, resurrection की क्या मतलब है? मैंने आप लोगों को लिखवाया था। रिस्टोरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बीइंग ब्रिंग बैक टू लाइफ, सही है। जब जो है वो ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन वी विल बी ऑल बैक कॉल्ड बैक टू लाइफ, सही है। जब हम सब दोबारा वापस आएंगे तो क्या कह रहे हैं, वी विल बी कॉल्ड बाय अवर नेम्स, और हम लोग अपने फादर्स के नेम से पुकारे जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, दैट इज वाई हमें क्या करना चाहिए, अपने नेम हमेशा अच्छे रखने चाहिए ताकि ऑन दैट डे हमारे नेम्स क्या रखें, सबके सामने अच्छे लगें, सही है ना। Okay, now we are stopping the topic over here. Kindly open your copies and I'm showing you our copywork. Hurry up. Okay, kindly open your copies. And yeah, first of all आप लोगों को क्या करना है, आप लोग मुझे, मैं अपनी आईडी लॉग आउट कर रही हूँ, मतलब एंड कर रही हूँ मीटिंग, दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ, सो काइंडली ज्वाइन मी अगेन, सही कि बस 3 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ। ओके एवरीवन, फौरन ज्वाइन करना है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, लीव कीजिए क्लास और दोबारा से ज्वाइन कीजिए। हरी अप।
ओके मिस यस राफिल, आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया ना? एग्जैक्टली आई वाज गोइंग टू टेल यू दैट। सही है, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? वी डिड ग्लॉसरी वर्ड्स। सही है, हम लोग ग्लॉसरी वर्ड्स किए थे 18 को। सही है, उसके बाद हमने 25 को क्वेश्चन एंड आंसर्स किए थे। वी डिड yes, we did 3 question and answers. Question number 1 was how did Islam make our society peaceful? Question number 2 was what did Holy Prophet ﷺ said regarding our parents? And question number 3 was what is the hadith of Allah regarding our parents? सही, हम लोग ये 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों को याद है? Whatever Yes. duties towards our parents, मैंने आपको कहा था कि आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, याद है सबको? यस मिस, ये Okay. मेरी कॉपी में है जी, तो हम ये जो सारा काम है कि वर्ड्स मीनिंग और 4 क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। सही है, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. Okay, question number 5 is who is a needy person? Okay, we will study this soon. सही है, तो needy person आपको बता देती हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली होता है ताकि आप लोग क्वेश्चन करते हुए समझ में आ जाए कि needy person क्या होता है। needy person वो नहीं होता जो कि बैक करता है। सही है, यानी कि आप लोग स्ट्रीट्स पे जाते हैं ना, स्ट्रीट पे needy persons दिख रहे होते हैं, needy person वो नहीं होते। needy person कौन होते हैं? प्लीज आप से बता दे क्या करना है, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गया हूँ। कौन बोल रहे हैं? अमसाल। मिस्टर मिसाल, अमसाल बेटा, हम लोग वर्ड्स मीनिंग और 3 क्वेश्चन हर दफा भूल जाती हूँ, हमारी क्लास में कुछ बेबीज हैं। ओके, हम लोग जो है वो वर्ड्स मीनिंग अमसाल हम कर चुके थे, हम 3 क्वेश्चन आंसर्स कर चुके थे और क्वेश्चन में 4 जो था व्हाट इज द ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद है अमसाल? याद है मिस। ओके, सो वी आर स्टडीइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। सही है, पहले सुन लो कि नीडी पर्सन क्या होता है। नीडी पर्सन क्या होता है? नीडी पर्सन वो पर्सन होता है जो कि अपनी जो कि हर वक्त बैग नहीं करता रहता है, जैसे हमारी स्ट्रीट पे दिखाएगा। मेरा ब्लू कट आगे नहीं चुरा है। लिसन लिसन यस यस मैं क्या करूं? ठीक है, ये देखे। ओ एक सेकंड, पोछा लगाना था। ओके, मिस ये देखे, काइंडली टेक द स्नैप्स मेरा ना आंसर्स। यहाँ तक काम हुआ हुआ है, अब इसके बाद मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से? Arif, just wait. I cannot see you right now, first of all, and the second thing is that yes, मिस हमने लिख ले। बिल्कुल आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। सही है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कि नीडी पर्सन कौन है? नीडी पर्सन कौन होता है? मैं आप लोग को म्यूट करके आती हूँ। मिस प्लीज पहले पूरा दिखा दें, उसके बाद टीचर पहले मेरी बात सुन ले। बिल्कुल, शुक्र। Now first listen to me and then I will listen to you. Okay? Okay, now kindly take the pictures. I'm explaining the question. Just listen very careful ताकि आप लोग जब करें तब आप लोग को मुश्किल ना हो। सही है, नंबर 1 क्या, who is a needy person? A needy person is not the one who begs. सही, needy person कौन होता है? वो नहीं होता जो कि हर वक्त बैग कर रहा होता है, लोगों से चीजें मांग रहा होता है। सही है, like for example the persons who we see on our signals। सही, हमारे सिग्नल से भी लोग आ रहे होते हैं, दे आर बैगिंग कंटिन्यूसली। सही, तो कह रहे हैं नीडी पर्सन वो नहीं होते, बल्कि नीडी पर्सन कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि किसी भी किस्म के अपने सौरों या अपनी कोई भी परेशानियां दूसरे लोगों को नहीं बताते। सही है, तो क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि हमारी नेबर्स में कुछ लोग होते हैं, हमारे एरिया में कुछ लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जैसे कुछ हमें पता होता है कि कोई किसी न किसी एरिया में कुछ लोग होते हैं जिनके जैसे फॉर एग्जांपल कोई फादर नहीं होती, किसी की मदर नहीं होती, कोई वर्क करने वाला नहीं होता घर में, तो क्या करना चाहिए? आपको ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और होली क्राइम ने क्या है कि जो भी ऐसे लोगों के ऊपर अपनी मनी स्पेंड करेगा उनके लिए रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे। सही है ना, उसके बाद आपको एक असाइनमेंट करना है। इसको आप क्वेश्चन में 6 का नाम दे सकते हैं, असाइनमेंट का नाम दे सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पेरेंट्स स्कोल्ड देयर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, व्हाट शुड चिल्ड्रन डू? स्कोल्ड का क्या मतलब होता है? डांटना। स्कोल्ड का क्या मतलब होता है? डांटना। सही है, आप इसके ऊपर 5 लाइन्स लिख सकते हैं, मोर देन इनफ है 5-6 लाइन्स। सही है, उसके बाद आपको ट्रू एंड फॉल्स करने हैं और उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ तक कोई मसला? सबको समझ में आ गया? मैं तुम्हारे ग्रुप पे भेज दूंगी। बिल्कुल, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। वैसे आप लोग को यूनिवर्सिटी में मिल जाता होगा ना वर्ड, क्या मुझे ग्रुप पे सेंड करना जरूरी है? यस, वाई? आप लोग कितने बड़े बच्चे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दे। ओके, मैं क्वेश्चन 5 दिखा रही हूँ। यस जाहिद, यस अब्दुल्ला फरहान। यूनिवर्सिटी में मिल जाता है काम, वही मैं कह रही हूँ, यूनिवर्सिटी में मिल जाता है और वही प्रॉपर वे है साइन करने का। सही है,
Just kindly take your snaps. Hurry up. Set the picture really. जो मैंने ली Pictures ले लो. वैसे तो मैं send कर दूंगी, but still if you want to take a picture you can take. ले ली सबने? Yes, Abdullah Farhan. You want to ask me something? No. Okay. Yes, Amna. Yes, Raja. सर मैं 5 पॉइंट्स लिखने हैं किस पे? Assignment में? मिस असाइनमेंट जो आपने दिया है Just you can write 5 points or you can write in a paragraph. 4 या 5 lines लिख लो आमना. बहुत है. सही है? कहाँ गई? Yes. टीचर थोड़ा सा नीचे कर दें Okay, I'm doing it. Yes, Raja. टीचर सुंदर पेंस दिखा दे Yes, I'm doing it. मैं सबसे ऊपर करे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ Okay. अभी रुक जाओ पहले ये सब पिक्चर ले लें इसकी. Yes, Sharaza. You want to ask me something? मेरे पास मैं आंसर पे हूँ उसकी आखिरी लाइन लिखनी है मिस क्वेश्चन नंबर 1 से दिखा दीजिए मैंने उसकी पिक्चर नहीं ली थी मैं मोबाइल लेने गया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने करवाया ही नहीं है. आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप लोग कर चुके हैं और ये काम मैंने आपको ग्रुप पे ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ. सही है शाहराजा? तो जो ग्रेड 6 का ग्रुप है वहाँ पे जाके चेक करो. वहाँ पे मैंने वर्क सेंड किया हुआ है ऑलरेडी. जिसका काम कंप्लीट नहीं है उसके लिए. ओके. किसी और को कुछ पूछना है? सबने पिक्चर ले ली? whoever spends money on such people क्वेश्चन नंबर 5 डन Have you all taken your picture? मेरा भी डन Great. नंबर 5 डन Okay. spend money Yes, Arif. What do you want to ask me? सर ये पूछ रहे टीचर मैं काम कहाँ से स्टार्ट करूँ और आपने कहाँ तक काम किया हुआ है? सर मैंने अभी तक काम किया ही नहीं है सिर्फ मैंने फोल्डर का पूरा काम कंप्लीट ओके. किया हुआ आप है क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्प्रिंग टाइम का टाइटल पेज बनाएंगे. मेरे साथ में ठीक क्वेश्चन है। नंबर 2 4 स्किप करवाया हुआ है नो, ये रहा क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 होमवर्क था जो मैंने आप लोगों को दिया था कि व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स. राइट 5 पॉइंट्स है. ये क्वेश्चंस हैं शाहराजा. ये मैं सेंड कर चुकी हूँ ग्रुप पे. तुम ग्रुप पे चेक करो. ग्रेड 6 से ग्रुप पे मैंने काम सेंड किया हुआ है. सही है जी आरिफ. सबसे पहले आप स्प्रिंग टाइम का टाइटल पेज बनाएंगे. फिर आप स्प्रिंग टाइम का सिलेबस लिखेंगे. फिर थर्ड पेज के ऊपर आप क्या लिखेंगे? चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे. चैप्टर का क्या नेम है? द राइट्स ऑफ फेलो ह्यूमन बींग्स. सही आरिफ. उसके बाद आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे. उसके बाद 4 क्वेश्चन ही मैं सेंड कर चुकी हूँ ग्रुप पे काम. और उसके बाद ये वाला काम करेंगे जो हम आज कर रहे हैं. आर वी क्लियर? मिस मीटिंग टाइम एंड हो गया यस. मैं भी यही देखने वाली थी कि हमारी क्लास एंड हो चुकी है. ओके. इस मैं कह रहा हूँ ये जो आपने क्वेश्चन में असाइनमेंट लिखा है उसमें क्या करना है क्या असाइनमेंट का पिक्चर ले दिखा तो दे लिए बेटा असाइनमेंट लिखा हुआ है असाइनमेंट में करना क्या है कि व्हाट if parents scold their children what should children do. अगर हमारे पेरेंट्स हमें डांटे फॉर वो एग्जांपल करना है हम तो लोग को हमें एग्जैक्टली कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें डांटे तो हमें क्या करना चाहिए? यू जस्ट नीड टू राइट 4 और 5 लाइंस. सही है ना? इतने बड़े बच्चे आप लोग 4 5 लाइंस लिख असाइनमेंट ओके, में क्वेश्चन ओके, दिखा दे ओके, मेरे से अब्दुल्ला मैंने अभी भी बोला है क्वेश्चन बेटा कि if your सो parents मिस नदा हुसैन ने बोला था आपको एक वीडियो देखकर आनी है तो अभी हमारे पास टाइम नहीं होगा तो बिल्कुल आप लोग जाइए. क्लास एंड हो रही है. ओके. मेरी भी क्लास है ग्रेड 5 की. ओके एवरीवन. अल्लाह हाफिज. इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल. ठीक है अदर्स तक क्वेश्चन है Yes. What should we do? What should children do? सही है अब्दुल्ला फरहान? ओके. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज.